Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we will discuss the 10 important question of CSIR NET and IIT JAM, in which there are 6 questions from linear algebra, 2 questions from modern algebra and 2 questions from applied. Now let's start. The first question is, let Z be the 3x3 matrix of all whose entry आर वन. मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिस मैट्रिक्स के सारे एंट्री वन होंगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3. लेट जे बी अ 3x3 मैट्रिक्स ऑफ ऑल हुज एंट्री आर वन. देन 0 and 3 are the only eigenvalue of A. Z is a positive semi-definite or Z is a positive definite or a J is a diagonalizable. Means here we have a given J is a 3x3 matrix. Second condition is all the entry are 1. By using this condition or a given, we have to show that कि 0 or we have to check कि which option is correct. Now let's start. Given is कि J is the matrix whose all entry are 1. This is given and the order of matrix is 3. And we know that since the rank of this matrix is 2, clearly we know that if we subtract row 2 minus row 1 and row 3 minus row 1, this second row and third row becomes 0. So therefore the rank of the matrix is 1. The rank of matrix is 1. Second, if each sum of each row is 3, 1 plus 1 3, this is 3, this is 3, that means the 3 is an eigenvalue of J. This is second from given. Means हमें यहां से पता चलता है कि मैट्रिक्स की रैंक 1 है, सेकेंड की 3 आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की है. और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है यहां से? नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन इज, सिंस रैंक ऑफ J is 1, that is, so therefore number of eigenvalue are at least number of, or we say that at least how many, at least 0 eigenvalue is order of matrix is 3 minus the rank of matrix, that is 1. So therefore there are minimum 2 eigenvalue may be 0. Means minimum 2 eigenvalue तो 0 होंगे. And since the matrix of order, the matrix of the order of given matrix is 3 and the one eigenvalue is already 1, so therefore all the eigenvalue are 0 except 3. मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है एक तो 0 0 होगी और सेकेंड आइगन वैल्यू होगी 2. मीन्स यहां से हमारे पास 0 0 3. अब ये इंफॉर्मेशन यहां से मिलता है, मीन्स बाकी सारे ऑप्शन को हम अब चेक कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि 0 and 3 आर द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स. क्लियरली यहां पे 0 0 3 यही एक आइगन वैल्यू है. दैट मीन्स the only eigenvalue of the given matrix are 0 and 3. Therefore, option number 1 is correct. Now, the option number second is कि J is a positive semi-definite and we know the definition of semi-definite. All eigenvalue is greater than is equal to 0. Clearly, our eigenvalue are 0 0 3. Clearly these are greater than or is equal to 0, so therefore J is a positive semi-definite. Therefore option 2 is correct. But in option number 4, is it positive definite? So clearly no, since if the matrix is positive definite, then 0 never be eigenvalue. That is, eigenvalue must be greater than 0, not greater than is equal to 0. Means अगर मैट्रिक्स
कि जितने भी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है। बट अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होंगे तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है। मींस ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। अब ऑप्शन नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि J इज अ डायगोनलाइजेबल और नॉट, मींस डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज J इज अ डायगोनलाइजेबल। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या J डायगोनलाइजेबल है या नहीं। वैसे तो डायगोनलाइजेबल चेक करने के बहुत सारे डेफिनेशन है। हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं और उसके लीनियर फैक्टर होंगे तो ये कह सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है तो भी कह सकते हैं आइगन वैल्यू है, या फिर वो मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हो तो भी हम कह सकते हैं वो डायगोनलाइजेबल है। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, every idempotent matrix is diagonalizable, every involuntary matrix is diagonalizable, every identity matrix is diagonalizable। तो यहां पे भी हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर सपोज लैम्डा ये आइगन वैल्यू है जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सपोज n है, n मीन्स कि लैम्बडा कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे उस आइगन वेक्टर के डायमेंशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। मीन्स इस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग द करस्पॉन्डिंग लैम्बडा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, या फिर सिंपल तरीके से हम ये भी कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस और अ डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब क्लियरली आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी, या फिर इसी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये है, या फिर एक डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। या फिर ये भी डेफिनेशन है कि व्हेन वी सी दैट कि लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू इफ दिस कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियरली हमें चेक किसके लिए करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के लिए तो अगर सपोज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी 1, बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मे बी 1 और 2। अगर 1 होगा तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, दैट मीन्स वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। बट अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर सेम हो गया तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो चेक करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो क्लियरली यहां पे आइगन वैल्यू 0 है तो देयरफॉर इसके सारे एंट्री 0 हो जाएंगे। वेयर x इज अ वेक्टर इन R³ तो देयरफॉर यहां पे x1 x2 x3 होगा। अब इसके इस मैट्रिक्स के सारे एंट्री 1 1 है, तो जब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां के सारे एंट्री 1 है तो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंट्री कैसे होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, मीन्स सारे एंट्री सेम होंगे तो इसके पास नंबर ऑफ, तो यही एक इक्वेशन बचेंगे क्योंकि x2 भी, अरे जो सेकेंड इक्वेशन वो भी सेम होगा, थर्ड इक्वेशन भी सेम होगा। तो यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x2 प्लस x3, दैट मीन्स x2 एंड x3 को हम कह सकते हैं ये कैसे वेरिएबल है, दैट इज फ्री वेरिएबल। हियर x2 एंड x3 आर free variable, so therefore the dimension of given eigen space is 2, तो therefore algebraic multiplicity geometric multiplicity के सेम है, तो therefore यहां पे जो j होगा वो diagonalizable होगा। by using
अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो देयरफॉर the first option is 0 and 3 are the only eigenvalue of A. So clearly this is right. Second option is J is a positive semi-definite. This is right. Third is J diagonalizable. This is also right. And J is positive definite. Positive definite. No. J is only semi-definite. Now, second question is let A and B be a complex n cross n matrix. The only given is A and B be a complex n cross n matrix. Then which of the following statements are true? मीन्स यहां पे ये कह रहा है कि A और B कॉम्प्लेक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं और फिर हमसे ये पूछ रहा है कि अगर फिर ऑप्शन को देख के हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? If A, B, A plus B are invertible, then what about A inverse plus B inverse? If AB and A plus B is invertible, then what we will say about A inverse minus B inverse is invertible. If AB is nilpotent, then BA is also nilpotent, or the characteristic polynomial of AB and BA are equal if A is invertible. We will check one by one. So here given the solution of 192. Question number 192. Here given A is invertible matrix. That means the determinant of A is non-zero. B is invertible. That means determinant B is non-zero. A plus B is invertible. That means the determinant of A plus B is non-zero. Now we have to check the A inverse plus B inverse is invertible or not. Now this can be written as A inverse B plus or we can written as B inverse A plus A inverse and for example A inverse A plus B inverse. मीन्स इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे A इंटू A इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी और ये मल्टीप्लाई होकर B इनवर्स आ जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा और B इंटू B इनवर्स इज आइडेंटिटी। मीन्स इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियरली A इज इनवर्टिबल। दैट मीन्स जब हम यहां पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, सिंस A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन्स, और A प्लस B भी इनवर्टिबल है, यानी कि इस मैट्रिक्स का भी जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉन जीरो होगा, इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। मीन्स टोटल अगर हर एक नंबर, इफ एवरी नंबर इज नॉन जीरो देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन जीरो। देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अगेन अ नॉन जीरो। मीन्स इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख के जब हम इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे एंड डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पे ब्रेक होता है, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज कि A इनवर्स माइनस B इनवर्स के बारे में क्या कहेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहां पे आइडेंटिटी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी इन्वर्टिबल होगा क्योंकि 2i और i का डिटर्मिनेंट 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम। मीन्स डिटर्मिनेंट जो है
आई एंड आई प्लस आई दैट इज 2i, सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। बट अब अगर हम आई का इनवर्स लेंगे तो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी, द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज अगेन आइडेंटिटी, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये एक जीरो मैट्रिक्स आएगा एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, तो देयरफॉर जीरो विच इज नॉट इन्वर्टिबल, तो देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन में ए इनवर्स बी इनवर्स के बारे में कह रहा था, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज if AB is nilpotent, then what about BA? Means if AB is nilpotent matrix, then what we will say about the matrix BA? तो चेक करते हैं what is the definition of nilpotent. Nilpotent definition is there exists some positive number k such that AB raised to k is equal to 0, मीन्स सम k पावर पे आंसर क्या होंगे, जीरो होंगे, तो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज AB solve up to AB is equal to 0, how many times, k times. Now we have to check, suppose BA raised to k plus 1, and we know that BA raised to k plus 1 means BA solve up to BA k plus 1 times, and if we take as AB solve up to this taking A and here AB, then how many times, k times, and we know that AB is k times, and we know that AB is a nilpotent matrix, therefore AB raised to k is 0, so therefore 0 into any matrix is 0, so therefore BA is also a nilpotent, but the index of BA is k plus 1, means अगर AB is a nilpotent matrix है of index k और nilpotency की ऑर्डर जो है वो k है, then the BA is again a nilpotent, but the order of the nilpotency is k plus 1, मीन्स अगर AB एक nilpotent मैट्रिक्स है तो BA भी एक nilpotent मैट्रिक्स होगा, बट उसकी जो इंडेक्स है वो k plus 1 होगी, तो therefore the option number third is right. Now option number fourth is the characteristic of AB and the characteristic of BA is same if A is invertible. अब ये आपके होमवर्क के लिए है. Here we have to use the definition of eigenvalue. We already taught you ax is equal to lambda x. This is the definition, or a minus lambda I x is equal to 0. These are the definition of eigenvalue. By using this definition, you can prove that the characteristic of AB is equal to characteristic of B if A is invertible. तो ये होमवर्क में होगा, आप चेक करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा. तो therefore if AB and A plus B are invertible, then A inverse plus B inverse, तो ये ट्रू है. सेकंड ऑप्शन A माइनस B इनवर्स के बारे में बोला था, ये रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन कह रहा था कि अगर A nilpotent है देन BA इज अगेन अनइलपोटेंट, देयरफॉर C ऑप्शन इज 3. डी ऑप्शन ये होमवर्क में आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल होगा. नाउ द 193. सिंपल, लेट W be an complex number such that कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ओमेगा इज नॉट इज इक्वल टू 1. इफ A is the matrix defined as, then which of the following statement are true? Here A is invertible. फर्स्ट ऑप्शन ये कि A invertible होगा. Clearly 1 plus omega square is 0. We know that since omega is a cube root of unity, therefore 1 plus omega square is equal to 0. The sum of first eigenvalue is 0. Similarly, the sum of second eigenvalue is 0. Sum of second row is 0. The sum of entry of third row is again 0. Therefore 0 is an eigenvalue of given matrix. Therefore option number C is right. A is invertible, no.
Now clearly since 0 is an eigenvalue, therefore the determinant of matrix is 0, so therefore the rank of matrix is less than or is equal to 2. मीन्स मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 या 2 से कम होगा. बट यहां पे अगर हम ये ले 2 + 2 का माइनर, तो क्लियरली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज़ टू 4 एंड ओमेगा रेज़ टू 4 इज नथिंग बट ओमेगा. तो क्लियरली दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पे 2 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर है, देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ 2 × 2 ऑर्डर विच इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट माइनर इज नॉन जीरो. देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज 2. Now the third option is there exists a linearly independent vector VW belongs to C cube such that कि AB is equal to AW is equal to 0. क्लियरली यहाँ पे AB और AW is equal to 0 है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि V और W कहाँ बिलोंग करेगा, उसके नल स्पेस के अंदर. अब नल स्पेस के अंदर तो बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एंड रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ या फिर कॉलम वेक्टर. तो कॉलम वेक्टर यहाँ पे 3 है. क्लियरली इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, यहाँ पे 2. तो देयरफॉर नल स्पेस के डायमेंशन कितनी होगी, 1. बट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके पास 2 ऐसे वेक्टर होंगे कि जो कि 0 पे जाएंगे, AB एंड AW इज इक्वल टू 0, बट विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर डी ऑप्शन इज रॉन्ग. और एक चीज लास्ट लेक्चर में मिस्टेक हो गई थी. जब हम होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं और एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो जब हम नॉन होमोजीनियस में जब किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं तो वहां पे द कॉलम वेक्टर माइनस, जब हम नल स्पेस को माइनस करते हैं तो वहां पे 1 ऐड करते हैं. तो वो एग्जांपल में हमारे पास जब हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज करते हैं तो वहां पे रैंक ऑफ ए क्या होगा, तो कॉलम वेक्टर वहां पे आई थिंक 4 थे, माइनस हमारे पास जो नल स्पेस था वो 2 था. तो यहां पे हम +1 ऐड करते हैं अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर नॉन होमोजीनियस हो. तो देयरफॉर 4 + 1 5 - 2 3. तो वहां पे उसका आंसर 3 था. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था. ठीक है, तो ये आपको नोट करना है. क्वेश्चन नंबर आई थिंक कुछ तो था कि 1 + 2s 1 + 3s, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल था. तो उस एग्जाम्पल में वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था. मीन्स यहाँ पे उस एग्जाम्पल में कुछ ax इज इक्वल टू 1 + 2 3 सॉल्व टू. तो यहाँ पे ये नॉन जीरो था. तो अगर ये नॉन जीरो यानी कि नॉन होमोजीनियस है, देयरफॉर 1 यहाँ पे ऐड करता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. तो वहां पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा और उसका आंसर 3 होगा. ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 194. 194 में ये कह रहा है कि लेट ए बी ए 4 × 4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री -1 1 2 -2. Clearly all the eigenvalue are distinct are its eigenvalue. Now if B is defined as a raised to 4 minus 5a square plus 5i, we know that कि if lambda is an eigenvalue of a, then p of lambda is an eigenvalue of p of a, which we have already known that. ठीक है. Now here the first option is determinant of a plus b is equal to 0, determinant of b is equal to 1, trace of a minus b is 0 and trace of a plus b is 4. Now by using given the lambda of a matrix means जो आइगन वैल्यू है द मैट्रिक्स A is 1 -1 2 and -2. By using this eigenvalue, we can find the eigenvalue of B. And what is B? B is a raised to 4 minus 5a square plus 5i. Clearly, this is even function. Therefore, the value of -1 and 1 and -1 are same. The eigenvalue of 2 and -2 are same. Put 1. Since a raised to 4 and a square both are even and I is identity. So therefore this clearly it is a even function. So if you put 1, so 1 5 minus 5 cancel, here 1. That means 1, and clearly if you put -1 again we will get 1. Now put 2. The value of 2 and -2 is same. If you putting 2, 2 raised to 4 is equal to 16. 2 square 4, 4 5 is 20.
20 here put if is we know that the eigenvalue of identity is 1, so therefore 16 plus 5 21 and minus 20 that is 1. तो if you put minus 2 we will get 1. मीन्स यहां से ये पता चल रहा है कि ए मैट्रिक्स की जो रैंक है, ये तो हमारे पास गिवन थी कि ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 -1 2 और -2 है, और बी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आ रही है 1 1 1. तो क्लियरली यहां पे अगर हमें ए प्लस बी का आइगन वैल्यू निकालना है तो सिंपल हम यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स की जो सारे आइगन वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर जब हम ए प्लस बी के आइगन वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का एडिशन होगा. अब दोनों का एडिशन मीन्स ये एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगी. तो देयरफॉर आइगन वैल्यू इज 2, इसे एक इंक्रीज करेंगे तो 0, इसे एक इंक्रीज करेंगे तो 3, इसे एक इंक्रीज करेंगे तो -1. दिस आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी. सिमिलरली द आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज द लेस देन 1. देयरफॉर 1 - 1 इज 0. मीन्स इस आइगन वैल्यू से एक कम होगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. तो -1 1 -2 2 -1 दैट इज 1 -2 -1 दैट इज -1. अब ऑप्शन देखते हैं. अब ये क्वेश्चन हो गया. क्लियरली कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0. क्लियरली ए प्लस बी में एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है, तो एक आइगन वैल्यू यहां पे 0 है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये आइगन डिटर्मिनेंट 0 होगा. सेकेंड कह रहा है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू. सिंस ऑल द आइगन वैल्यू आर 1, तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज अगेन 1. मीन सेकेंड ऑप्शन राइट है. थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि द ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज 0. अब ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज 0 मीन्स ट्रेस क्या होता है? द सम ऑफ आइगन वैल्यू. क्लियरली जब हम यहां पे ऐड करेंगे तो ये तो 0 नहीं आ रहा है. तो देयरफॉर द ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज नॉन जीरो. मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन ये भी राइट है. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस बी 0, ये रॉन्ग है. कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज 4. तो ए प्लस बी के तो सारे आइगन वैल्यू क्या थे? अरे सॉरी हमने रफ कर दिया. तो आई प्लस बी मीन्स -1 2 -2. ठीक है. तो एक नंबर इसे इंक्रीज करना था. मीन्स इसे एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो 0, और इसे इंक्रीज करेंगे 2, ये 3, यहाँ पे ये -1. तो क्लियरली 2 + 3 इज 5, 5 - 1 इज 4. तो देयरफॉर जो ट्रेस होगा ए प्लस बी का वो कितना हो जाएगा? 4. तो क्लियरली हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है. दैट मीन्स द ए बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 195. Let M be a 2 × 2. Let M2 denote the set of 2 × 2 real matrix. Let A belongs to M2R. Be the trace 2 and determinant is -3. मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 ऑर्डर का, जहां पे उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो 2 और -3. And we define the linear transformation as T of A is equal to T of AB. सॉरी यहां पे शायद ये डेफिनेशन रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए हमारे पास गिवन है. तो T of B is equal to BA. दिस इज द डिफाइन एज मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है. अब इस तरीके तो इसे नहीं सॉरी तो इसे डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है कि T of B इज इक्वल टू ए बी. ये हमारे पास मैट्रिक्स डिफाइन है कि T of B को कैसे डिफाइन करेंगे? ए बी इस तरीके से डिफाइन किया. अब बाय यूजिंग दिस वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सिंस T इज गोइंग फ्रॉम M2R to M2R and we know that the definition the dimension of this matrix is 4. The dimension of this matrix is 4. That means the whatever the matrix we will form, the order of that matrix is 4 × 4. So first हम क्या करते हैं, एक साइड में एक 4 × 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं. ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे साइड में एक 4 × 4 मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 4 × 4. अब इस मैट्रिक्स
अब वी नो दैट कि जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जब हर एक बेसिस के एलिमेंट लेके जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो जिसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम कॉलम वाइज लिखते हैं। तो हम सपोज फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, सपोज 1 0 0, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। और डिफाइन किस तरीके से किया है, टी ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी, और ए मैट्रिक्स को सपोज हम ले लेते हैं अभी के लिए ए बी सी डी। तो हियर 1 0 0 1, तो देयरफॉर फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए, यहाँ पे ये देखो ये एंट्री आ जाएगी, बाकी 0, सिमिलरली यहाँ पे सी और 0। तो जब हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे ए 1 0 0, नेक्स्ट इज 0 0 1 0, सी 0 0 1 0, and D is 0 0 0 1. So therefore this can be expressed as a basis of standard basis, means हम इस स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हैं। So therefore ये जो एंट्री है इसे हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे सॉरी 0, क्योंकि D का कोई एलिमेंट नहीं। तो therefore A0 C0 इसे हम जो ने मैट्रिक्स हमने साइड में लिखा है वहां पे इसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A0 C0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे एंट्री को भी निकाल सकते हैं। तो जब हम बाकी सारे एंट्री को निकालेंगे तो वी विल गेट 0 A 0 C, सिमिलरली हियर B 0 D 0 0 B 0 D। तो वी विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स हमें मिलेगा जब हम बेसिस का यूज करेंगे। E1 ऐसे E2 यूज करेंगे तो हमें ये एंट्री मिलेगी, ऐसे E3 यूज करेंगे तो ये, E4 यूज करेंगे तो ये। तो जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट होगा जो बेसिस के एलिमेंट होंगे। बट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो गिवन है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -3 है, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना है, 2 है। वी हैव गिवन कि लैम्बडा इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, क्योंकि ट्रेस गिवन है। द ट्रेस इज नथिंग बट 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 इज नथिंग बट -3। ये हमारे पास गिवन है। बाय यूजिंग दिस वी फॉर्म द मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लैम्बडा 1 को हम लिख लेते हैं 3 और लैम्बडा 2 को ले लेते हैं -1। तो क्लियरली जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू -1 कितना होगा, -3, और 3 -1 कितना होगा, 2। तो देयरफॉर सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं यहां पे -1 और 3। तो यहां पे हम लैम्बडा 1 को 3 और लैम्बडा 2 को -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब लैम्बडा 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और लैम्बडा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो देयरफॉर जब हम तो लैम्बडा 1 को 3 और लैम्बडा 2 को -1 लिख सकते हैं। अब यहां पे सपोज हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया, डायगोनल मैट्रिक्स, कि जिसकी पहली एंट्री यहाँ पे -1 और सेकेंड एंट्री 3 होगा। मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अब लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई -1 और यहां से D की वैल्यू आ गई 3। अब इसे लेके जाके हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 3 इन द गिवन मैट्रिक्स। So therefore we will get the matrix of order 4 cross 4 as, since सिर्फ A की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे -1 और B की वैल्यू D की वैल्यू कितनी थी 3, तो therefore सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आएंगे, यानी कि A के प्लेस पे लिखना है -1 और D के प्लेस पे क्या लिखना है, 3 and 3, ऑल द एंट्री आर 0। मीन्स हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन राइट होंगे और कौन से ऑप्शन रॉन्ग होंगे।
हाँ, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टी डायगोनलाइजेबल होगा, तो क्लियरली पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, क्या 2 आइगन वैल्यू होगा टी का, तो क्लियरली यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो इसकी आइगन वैल्यू होंगी वो -1 और 3 होंगे, तो क्लियरली सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि टी इन्वर्टिबल होगा, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। नाउ टी इज डायगोनलाइजेबल, क्लियरली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनलाइजेबल। अब डी ऑप्शन काफी सिंपल है, टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी पुट कर सकते हैं फॉर सम 0 इज नॉन जीरो बी, मतलब हम इस बी एक मैट्रिक्स ले लेंगे और हमने मैट्रिक्स को ऑलरेडी डिफाइन किया है कि टी ऑफ बी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टी ऑफ बी को हम डिफाइन करेंगे ए इंटू बी, और जहां पे हमने ऑलरेडी जो ए मैट्रिक्स है, हम ए मैट्रिक्स को क्या लिए, ए मैट्रिक्स को -1 और 3, डायगोनल पे -1 और 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू ये पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी फॉर सम नॉन जीरो पे, ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि टी ऑफ बी को हम कभी नहीं लिख सकते जब बी की वेक्टर क्या होगी, नॉन जीरो, तो यहाँ पे बी हमेशा 0 होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसे हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 196, नेक्स्ट क्वेश्चन 196, क्वेश्चन नंबर 196। अब 196 में क्या कह रहा है, कि T is a linear transformation from R cube to R cube. We define as T of 123 is equal to 123, T of 150 is equal to 210, 210, and T of -1 to -1 is equal to -363. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज हम इसे ले लेंगे E1 वेक्टर, इसे ले लेते हैं E2 वेक्टर, एंड दिस इज अवर E3 वेक्टर। तो क्लियरली T of E1 is nothing but 1 2 3, therefore E1, यहां पे भी E1, तो हम लिख सकते हैं T of E1, सपोज ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड 150 is 210, तो therefore T of E2 डिफाइन एज 2 इंटू E2, क्लियरली यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, दैट इज T of E3 इज इक्वल टू TE3। तो therefore जब हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो मैट्रिक्स किस तरीके से होगी, यहां पे सिर्फ E1 का कोएफिशिएंट है यानी 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, यहां पे सिर्फ E2 का है यानी कि 0 2, बाकी सब 0, यहां पे सिर्फ E3 एंट्री यानी कि 0 0 3, तो क्लियरली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। अब ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन बाय ऑल आइगन वेक्टर ऑफ टी, तो क्लियरली यहां पे T इज अ डायगोनल मैट्रिक्स and each and every eigenvalue are distinct, so therefore the corresponding eigenvector are distinct and all are linearly independent, so therefore the vector space formed by the eigenvector of this matrix has a dimension is 3। मीन्स अगर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होंगे, एंड वी नो दैट कि इफ ईच आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट देयर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तीनों, यानी उससे जो स्पेस फॉर्म होगा उस स्पेस का डायमेंशन कितना होगा, 3 होंगे। तो देयरफॉर यहां पे पूछ रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस स्पैन बाय द आइगन वेक्टर ऑफ टी इज, मीन्स हमारे पास इस तरीके का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन गिवन है, देन द डायमेंशन ऑफ ऑल वेक्टर्स पे स्पैन बाय ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ टी, सो देयरफॉर दिस इज 3 ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 197, which is related to Gaussian integers, for which of the value n is the quotient ring z of I and zi is an integral domain। तो क्लियरली यहां पे एक फॉर्मूला होता है कि z ऑफ I अपॉन n z ऑफ I इज आइसोमॉर्फिक टू
filled if जब n is 3 मॉडुलो 4, तो यहां पे n जब होगा वो 3 मॉडुलो 4 होगा, तो देन वी से दैट कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड एंड वी नो दैट एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 है, 13 है, 19 है, यहां पे 7 है। अब यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। अब उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 3 होगा। अब 4 3 को डिवाइड नहीं करता है। क्लियरली यहाँ पे 13 पुट करेंगे तो 13 माइनस 3 कितना होगा, 10, और 10 को 4 डिवाइड नहीं करता। 19 पुट करेंगे तो 19 माइनस 3 16, क्लियरली 4 16 को डिवाइड करता है। 7 माइनस 3 4, क्लियरली 4 4 को डिवाइड करता है। मीन्स 19 एंड 7 ऑप्शन आर राइट। मीन्स जो हमारा ऑप्शन है वो 19 और 7 रॉन्ग राइट हो जाएंगे, बाकी बी एंड डी ऑप्शन रॉन्ग। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये इरिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल में, तो वी नो दैट कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल 2 और 3 डिग्री का है तो उसे हम रूट टेस्ट का यूज करके कर सकते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम Z3 चेक करते हैं तो Z3 दैट इज एंट्री 0 1 2, तो इफ यू पुट 0 वी विल गेट 1 विच इज नॉन जीरो। इफ यू पुट 1 वी गेट 1 + 1 2 + 2 4, 4 is nothing but in Z cube is 1 and 1 which is not non-zero. If you put 2, 2 cube 8, 2 square 4, 4 2 is 8, 8 plus 1 16 plus 1 17. If we divide 17 by 3 we get 2 which is non-zero, so therefore this is irreducible. For g of x, if we put 0 we get 2 which is non-zero. If we put 1, 1 plus 1 2, here 2, 2 plus 2 4 plus 1 5, 5 is nothing but 2 which is non-zero. If you put 2, 2 square 4, 4 2 is 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, and clearly 12 is divisible by 3, means g of x is reducible. So therefore we say that कि f of x is a irreducible polynomial but g of x is a reducible polynomial by simple using root test. Therefore the option is f of x is reducible and g of x is not. तो therefore B option is right, A, C, D option are wrong. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल, ये पीडी का क्वेश्चन है, ये भी काफी सिंपल है और ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आपको टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इसके अलावा जो भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो इससे जो भी पुरानी वीडियो है वो सारे लेक्चर्स को देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो सारे मिल सके। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।